السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج ہمارا نیا ٹاپک ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور اس میں بہت کم محنت کرنی پڑے گی. محنت کم ہے، اجر زیادہ ہے. تو اس طرح یہ کہ اس کے اگر پورے لے گئے ہیں تو 15 افراد ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں استعمال بھی ہوئے ہیں اور بہت سے لفظ ایسے ہیں جو ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو ہم خاص تو لیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ لفظ بتا دیں گے بعد میں. لیکن جو ایزی ہے، بہت کامن ہے استعمال میں، اس کو ہم لے رہے ہیں. 2-3 کو چھوڑ دیں گے. اس کو ہم جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. آج تو حرف جار پڑھیں گے. تو حرف جار جو ہے، جار کیا ہے؟ اب آپ جار کے اگر سمجھنے کے لیے کریں گے تو میں انگلش کا ایک لفظ بولوں گا، آپ کو فوراً پری پوزیشن جو ہے حرف جار کا. اب سمجھ میں آ گیا پری پوزیشن کیا ہے؟ پری پوزیشن آن، ایٹ، ابو، یہ سب جو ہے پری پوزیشن اس کی یعنی کہ. تو یہ ٹوٹل جو ہے ہم جو پڑھیں گے 11-12 پڑھیں گے اور یہ قرآن میں بےحد استعمال ہوا ہے. تو ہر اسم کے 3 حالت تھی. رفع، بیسک حالت رفع، دوسری نصب، تیسری جر. تو جو رفع والی صورت میں ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع، اور جو نصب کی اس میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منصوب، اور جو جر کے اس میں ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں مجرور. ٹھیک ہے. مجرور کا ٹوٹل 2 وجہ ہے جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ یہ مجرور میں آئے گا. اگر رفع میں ہو یا کسی بھی ہو، رفع میں ہو، نصب میں ہو، کسی حالت میں ہو، وہ مجرور میں چلا جائے گا. تو اس کی 2 حالت ہیں. ایک حالت ہم نے پڑھی جب مرکب اضافی پڑھ رہے تھے، مضاف علیہ جو ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ مضاف علیہ ہمیشہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ایک وجہ تو پتہ چلی ہے. دوسری وجہ جو ہے آج ہمیں پتہ چلے گی کہ وہ جار لفظ ہے جو اگلے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. جار ہے لفظ جو اگلے، وہ جار کے میں چند وہ کر لیتا ہوں. اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کی پریکٹس کرا دوں گا ضمیر کی بھی، تاکہ ہم ضمیر میں جب استعمال کریں گے تو آسان ہو جائے گا. ایک چیز میں نے اس کو قاعدے سے لکھی ہے ایسی کہ آپ بھولیں گے. 4 لفظ تو ایسے یاد آ جائیں گے، بلکہ 5 لفظ. بوتل، بوتل میں لگتا ہے کاف، تو کم از کم 5 ہے کاف. تو بوتل میں ہے بے، واو، کے، لام. بوتل وہ پوچھا بھی وہ کر دیجیے گا. تو اس طرح یہ ہے بے، واو، تے، لام اور کاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بے میں زیر لگی ہے. بے معنی ہوتا ہے ساتھ. بے کسی کے ساتھ آئے گا، اسم کے ساتھ آئے گا، تو فوراً وہ مجرور ہو جائے گا. وہ اسم جو ہے
मजबूर हो जाएगी। अच्छा, बे माने होता साथ। यहाँ देखिए इसम था, इसमू था, तो बे लगा तो इसमी हो गया, बिस्मी, इसमें ठीक है ना। तो बे के साथ हमेशा जब बे लगा होगा, कलमुन है, यहाँ बे लगेगा तो बे हट के यहाँ बे कलमिन हो जाएगा। यहाँ जब बे लगेगा तो ये हट के बिलखल में हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमजतुल वसल है, ये पढ़ा नहीं जाएगा। बिलखल में, कलम से, ये कलम के साथ। अच्छा, वाव जो है, आप लोगों को पता है कि वाव जो है वो हम ज़्यादातर लोग जानते हैं इसके माने और उस वक्त माने होगा, हम इसको पढ़ेंगे कभी उसमें। तो अब उस वक्त वाव के बाद हमेशा जो है लफ्ज़ रफ़ा होगा और दो चीज़ों के दरमियान आएगा। ये बत्ती जला देना, उधर से चलती है सर, ये नहीं जली है, इसमें लाइट पड़ रही है। तो वाव माने होता है जब वाव आए उसके बाद मजरूर हो जाए लफ्ज़, तो वो होगा इस कसम, कसम। अब जैसे असर हम कहते हैं, हम असर शोरा पढ़ा होगा, यानी एक ज़माने के शायर, हम असर शोरा अच्छा ज़माना। ज़माना। तो असर जो है वो क्या है, ये ज़माना। तो अल असर जो है ये पीरियड, ज़माना। हम ज़माना कहते हैं, उर्दू में हमारे ख़ास नहीं लिखा होता है, मतलब कि उसको बताइए कि ख़ास। तो हम जब ये अल असरू था, इधर वाव लगाएंगे तो ये जो है ये इसमें चला जाएगा, वल असर। और ये जो है हम जब असल है पढ़ा नहीं जाएगा, वाव वल असरी। दो चीज़ हमने पढ़ ली, बे के माने साथ और बिल कलम, कलम के साथ, और वाव कसम के लिए, वल असरी ज़माने की कसम, वल शम्सी सूरज की कसम, वल कमरी चाँद की कसम। अब जितना भी आप देखें कुरान बाहर पढ़ा है, कसम जो खाई है बताना है वज़्ज़ुहा। हाँ, ये इन्होंने ये कहा कि वज़्ज़ुहा में तो यानी मजबूर नहीं हुआ। वज़्ज़ुहा में बात यह है कि ज़ुहा जो है वो मुबनी है। तीन किस्म हमने पढ़ी थी पहले कि मुनसरिफ जो है 85% है, उसमें तनवीन आती है, पेश की तनवीन, ज़बर की तनवीन नज़ब में, और ज़ेर की तनवीन, ठीक है। तो ये 85% जो है वो जो होता है मुनसिफ होता है, यानी कि उसकी पहचान ये है कि तनवीन होगी, दो पेश होगा, दो ज़बर होगा, दो ज़ेर होगा। गैर मुनसरिफ ये होता है कि इसमें तनवीन नहीं होगी और इसमें तब्दीली भी दो होती है। वो ये होती है कि रफ़ा में पेश और नसब और जर में ज़ेर लगा हुआ होगा या ज़बर लगा होगा। मुन्नस हो गए तो आतीन आतीन करके आता है, लेकिन मुज़क्कर होगा तो ज़बर लगा होगा। जैसे नबियों के नाम हैं, हारूनु, हारूना, हारूना। आदमू सबसे पहले पैगंबर, आदमू नसब आदमा और जर आदमा। और एक लफ्ज़ है मबनी, तो उन्होंने लफ्ज़ मबनी कहा था। मबनी वो लफ्ज़ है जो
रफ़ा में भी यानी वो रहेगा सेम, नसब में भी सेम, जर में भी सेम रहेगा। इसलिए वक्त दुहा जब लिखते हैं उसमें वो ज़ेर में नहीं लिखेंगे, उसकी एक ही कैफियत होती है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि अब सवाल ये होता है कि हम और रोशनी क्यों नहीं पढ़ेंगे, और वहाँ माने रोशनी होते हैं, ठीक है, तो हम ये क्यों नहीं पढ़ेंगे, और इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उससे पहले जो और जिसके मानी होती है उससे पहले कोई लफ्ज़ होता है, वो और ये क्लियर हो रही बात, कि इसलिए हम और नहीं पढ़ेंगे। इस एकदम वो आया तो इसके माने ये है कि ये जो है कसम का वाव है, और ये जो है इस वक्त जो इसकी शक्ल है तो सेम, लेकिन ये इस वक्त मजरूर है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो जितनी कस्में आपने वाव करके वाला सरे वशम से ये सारी कस्में, लेकिन इसकी ये होगी कि हमेशा वो लफ्ज़ इसके बाद जो इसम पे आएगा, इसके बाद इसम ही आएगा, कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकती। जो इसम आएगा उसमें जो है वो मजरूर होगा। मजरूर का मतलब यह है कि आप इधर आ जाए, अगर मुस्लिमून है तो मुस्लिमीन हो जाएगा, मुस्लिमाने है तो मुस्लिमीना हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुस्लिमूना है तो मुस्लिमीना हो जाएगा। ये सारे जर हैं इसके। और यहाँ जो है जो जर मजरूर होगा, तो अगर वाह लगा है या कुछ लगा है तो मुस्लिमान तीन है, ये जर हो गया। मुस्लिमान तैनी, दो आदमी है, दो औरतें, दो मुसलमान होते हैं तो, और मुस्लिमान तीन ये मजरूर है। ठीक है, यहाँ ये मजरूर है, यहाँ ये। इसको मैंने हरे कलर से खास तौर पे लिखा है ताकि ये क्या पता चले, इसको भी हरे से लिखा। अच्छा, तो अब तक आपने पढ़ी बोतल का बे वाव पे। लाम माने होता है लाम जेर के साथ, लिए या के लिए, लिए के लिए। आमतौर पे आप कहते हैं अल्लाहू है, इससे पहले लाम लगाया, लिल्लाही, लिल्लाहू नहीं होगा, लिल्लाही। आप उर्दू में भी कहते हैं लिल्लाही, इसे छोड़ दें, ये गरीब आदमी है, लिल्लाही अल्लाह के लिए इसको छोड़ दें। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा इसका। तो लाम जो है लिए के लिए, और बाज़ औक़ात का भी मानी देता है, जैसे कम बिनती अंदर, या इसका कहते हैं ना, तो कहेंगे लहू खमसा बनाती, उसके 5 यानी बेटियाँ हैं। तो ली माने लिए के लिए, और का के भी माने होते हैं। ठीक है, और काफ ज़बर के साथ ये किसी चीज़ का कंपैरिजन किया जाए कि ये इसकी तरह है, ये पंखे की तरह, ये घर मस्जिद की तरह नज़र आ रहा है, तो हम का लगाते हैं। क्या लगाते हैं? का। शजरतुन है, शजरतुन माने होता है दरख्त। मैं कहूँ दरख्त की तरह, तो उससे पहले शजरतुन, तवज्जो दीजिएगा कि काफ लगाया हमने, का शजरा 3 हो जाएगा, दरख्त की तरह। असद कहते हैं शेर को, अल असद शेर, और हम उससे पहले काफ लगा देंगे कहीं शेर की तरह है, तो कल असादिन मजरूर हो जाएगा। असादुन था, असादिन हो गया। आ रहा है क्लियर? तो काफ जो है ये मुख्तलिफ, क्योंकि ये बच्चा तो है चांद की तरह है, तो कल कमरी, उसका गुस्सा जो है सूरज की तरह है, कशमसी, ठीक है, सूरज की तरह। तो जब जैसे का लगेगा तो वो रफ़ा में भी हो, किसी भी उसमें होगा, वो मजरूर हो जाएगा, जेर से लिखा जाएगा। अब आपको मैंने बता दिया, अगर जो तो ईना की साउंड, आईनी की साउंड, और अगर जमा है तो ईना की साउंड।